Assalamu alaikum. Today we're going to start lecture number 5, which is about chapter number 3 of your books. Chapter number 3 is an interesting topic, a little different from what we've been doing so far. The whole idea and the concept behind chapter number 3 is basically understanding what ethics is, what is the importance of ethics in a corporation, company or a business, and then finally it moves on to explain what social responsibility is, and again its importance for corporations, business and entrepreneurs. So that is what chapter number 3 is, conducting business ethically and responsibly. Now the chapter outline, just for you to know, would have these following things. First up is ethics in workplace. We're going to define what ethics is, and then we're going to talk about the importance of ethics in workplace, and then we're going to talk about the fact that what does unethical practices do and why should we go for ethical practices, and what is the impact of ethical practices on various operations of a company or a business organization. We're going to talk about corporate social responsibility, or CSR as we call it, and discuss what social responsibility is, discuss the importance of social responsibility, talk about why in today's time social responsibility or CSR why is it so important these days. Next up, we're going to talk about areas of social responsibility. What can the company do? What should the company do in various aspects of social responsibility? We're going to talk about how can we implement social responsibility programs. What should the managers do? What should the organization do? And what should the owners do to make sure that the social responsibility programs are important and they can be implemented successfully in an organization. First thing that we need to do when we are talking about ethics is it's a very common word that all of us use on and off. It's something that everybody uses, but the point is, or the discussion is, do we know the meaning of it? हम हर दफ़ा कह देते हैं ये अनएथिकल है, फलाने बंदे ने जो काम किया वो अनएथिकल है, वो उस बंदे की एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है, जो फलानी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो है उसको नहीं पता, वो बहुत अनएथिकल काम करता है. बट क्वेश्चन इज कि हम सबको मालूम है कि एथिकल का क्या मतलब है या एथिक्स क्या चीज़ होती है. दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू एट द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज बेसिकली distinction between what is right and what is wrong, what is good and what is bad, what is just and what is unjust, right? So for example, stealing is unethical. Why? Because it is a wrong thing to do. When an elder comes into the room and you give your seat to that elder, that's ethical. Why? Because it's the right thing to do, right? So basically ethics is क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और इसके बीच में डिस्टिंक्शन करना कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ जस्ट है, कौन सी चीज़ अनजस्ट है, कौन सी चीज़ फेयर है, कौन सी चीज़ फेयर नहीं है. डिस्टिंक्शन करना, मालूम होना is what ethics is. Now generally question is कि ethical behavior कौन सी चीज़ें हैं जो कि एथिकल बिहेवियर डिटर्मिन करती हैं. इस क्वेश्चन में जाने से पहले या इसका आंसर ढूंढने से पहले यू नीड टू रियलाइज कि एक टॉपिक होता है, एक चीज़ होती है, 10 लोगों के उसी एक चीज़ पर वेरियस व्यूज़ होते हैं, राइट? मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल ओपिनियंस एंड मल्टीपल व्यूज़ अबाउट दैट वन थिंग. इट कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सिमिलरली हर इंडिविजुअल या हर आदमी, हर बंदे की एथिकल स्टैंडर्ड्स फ़र्क होते हैं या एथिकल बिहेवियर फ़र्क होता है. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई बेसिकली मीन कि इंडिविजुअल जो सोचता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, उसका ये सोचना सही और गलत के बारे में हर इंडिविजुअल का फ़र्क होता है. सो वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या वजह है कि सब लोग डिफरेंट एक चीज़ के बारे में डिफरेंट तरीके से क्यों सोचते हैं. एथिकल बिहेवियर इज़ primarily determined by two things. First up, individual behavior, and second, the society in which that person lives in, और जिसके अंदर वो रहता है. So कोई भी ethical behavior होगा, और हमारे रेफरेंस से एक organization
की जब हम बात करते हैं, एक बिजनेस कंसर्न की जब हम बात करते हैं, तो हम उसमें एथिकल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, दैट इज डिटरमिन्ड बाय इंडिविजुअल बिहेवियर प्लस द सोसाइटी इन विच दैट इंडिविजुअल रिजाइड्स इन। इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या आ जाएगा कि मैं किस चीज़ को सही या गलत समझती हूँ, या मैं किस चीज़ को समझती हूँ कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ये आ जाएगा कि सोसाइटी किस चीज़ को गलत समझती है और सोसाइटी किस चीज़ को सही समझती है। बहुत दफ़ा आपके जहन में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आ सकते हैं, सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ जिस चीज़ को आप सही समझते हैं दूसरा बंदा उसको गलत समझता है, और जिस चीज़ को सोसाइटी सही समझती है उसको आप गलत समझते हैं। सो बेसिकली कोई भी एथिकल बिहेवियर होगा उसके दो डिटर्मिनेंट्स होंगे। फर्स्ट अप इज योर इंडिविजुअल बिहेवियर, व्हाट यू थिंक एंड डू इज राइट और रॉन्ग। सेकेंड अप इज द सोसाइटी इन विच एन इंडिविजुअल रिजाइड्स इन और लिव्स इन। फाइनली जब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, मोर और लेस ऑल एथिकल स्टैंडर्ड्स और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विल be directly related to what your society think is right and wrong. बहुत कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो एथिकल स्टैंडर्ड हो और सोसाइटी के नॉर्म्स हों वो डिफरेंट हों। नाउ टू एलैबोरेट ऑन दिस पॉइंट फर्दर, let's just divide this particular sentence into various parts. Ethics, we know what it is, difference between right and wrong. Social, the word has come out of society, and society is the environment in which we all live in. Norms is basically a term which has been sort of picked up from the word normal, and norm means कि ऐसी चीज़ें जिसको आपकी सोसाइटी नॉर्मल समझती है या जिस पर आपकी सोसाइटी को कोई इश्यूज नहीं होते हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। सो सोशल नॉर्म्स are those practices or those actions which your society thinks are right and which your society thinks should be done and which your society thinks is very much part and parcel of your particular lifestyle or of your particular culture or of your particular behavior. So कोई भी ethical standard होगा, it will conform to the social norms, meaning कि जो आप समझेंगे कि ethically सही है वो automatically आपकी society की normal practices के साथ relate करेगा या coincide करेगा। For example, society thinks that stealing is wrong, right? Anybody, if you talk to anybody in your family, anybody that you know, and you ask कि जी आपका stealing के बारे में, theft के बारे में क्या ख्याल है, and they're going to say नहीं बिल्कुल गलत है। The society in general, everybody A to Z from top to bottom will say that stealing or theft is something which nobody should do and it's completely wrong under any circumstances, right? Now that's what your society thinks, and that is a societal norm that stealing is wrong. That particular norm is also an ethical standard now, because in terms of ethics you would also say that stealing is not the right thing to do, or stealing is something that nobody should get into, या किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए. So this is the meaning of this particular sentence, that your ethics correlates with the societal norms. जो आप ethically सही समझते हैं या जो आप ethically गलत समझते हैं वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी सोसाइटी की नॉर्मल प्रैक्टिसेस से, कि सोसाइटी क्या समझती है कि सही है और सोसाइटी क्या समझती है कि गलत है. As opposed to ethical behavior, you have unethical behavior, right? Simply stating कि unethical behavior क्या चीज़ है, and unethical behavior are all those behaviors, all those actions जो कि सही नहीं होते, जो कि unjust होते हैं, जो कि गलत होते हैं. That's the general layman language of what unethical behavior is. However, if we sort of do it in a more in a way that your book has written it, it's basically behaviors that conforms to beliefs and norms about what is defined as wrong. So unethical behavior is कि ऐसा सारे ऐसे एक्शंस या सारा ऐसा बिहेवियर जो जनरली सोसाइटी समझती है कि गलत है या नहीं करना चाहिए या अनजस्ट है या अनफेयर है, वो सारे बिहेवियर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अनएथिकल बिहेवियर्स हो जाते हैं. सो अगेन द सेम थिंग, जो सोसाइटी गलत समझती है दैट इज इक्वल टू वो ऐसी चीज़ जो एथिकली भी गलत समझी जाती है. सो दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट अनएथिकल बिहेवियर इज. सो द अर्लियर एग्जांपल दैट आई गेव यू ऑफ स्टीलिंग
इज समथिंग जो कि सोसाइटी गलत समझती है, एंड सिमिलरली एथिकली भी आप उसको गलत समझते हैं. सो द सोसाइटल नॉर्म्स एंड द एथिकल स्टैंडर्ड्स आर वन एंड द सेम थिंग. What I've been explaining to you till now is generally what ethics is. Ethics क्या चीज़ होती है, ethical behavior क्या है या unethical behavior क्या है. But from this point onwards, my discussion is going to specifically focus on what business ethics is. Business ethics क्या चीज़ होती है, क्यों important होती है, इसके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, business के operations पर इसका क्या impact पड़ता है, और businesses जो हैं वो business ethics को इतनी importance क्यों दे रहे हैं आजकल के ज़माने में. Now, business ethics is basically defined ethical or unethical behavior by employees towards anybody in the environment. So ethical behavior भी हो सकता है business ethics में, unethical behavior भी हो सकता है business ethics में, और ये दोनों behavior चाहे ethical हो या unethical हो, they are basically behaviors or actions which are taken up by the employees of the organization with respect to any other individual, with respect to any other person which is in its internal environment or the external environment, which is inside the organization or outside the organization. So that is what business ethics is. Now, what we're going to do is we're just going a little back into history कि जी ethics किसी individual के ethical standards कैसे form होते हैं. For example, I might have a different set of ethical standards as compared to you. अब ये क्यों हुआ? Both of us live in the same country, we breathe the same air, we more or less eat the same kind of food, we sort of also speak a similar same kind of language. So क्या वजह है कि आपके भी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, बाल हैं, सब कुछ तो सेम है. सो मेरे और आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स क्यों फ़र्क हैं? क्या वजह है कि जिसको आप सही समझते हैं उसको मैं गलत समझूं, या जिसको मैं सही समझूं उसको आप गलत समझें? You need to think about it. एक पर्टिकुलर एक्शन मल्टीपल लोगों के लिए, उस पर हम क्यों डिस्कशन करते हैं? क्यों मल्टीपल लोग उस पर बहस करते हैं कि ये सही है या गलत है? जो चीज़ सही है उसको सबको सही कहना चाहिए, जो चीज़ गलत है उसको सबको गलत कहना चाहिए. असूली तौर पर तो यही होना चाहिए. But that doesn't happen. It doesn't work that way. Everybody thinks differently. Everybody would have a different set of ethical standards. मेरे लिए जो गलत, आपके लिए जो गलत, फ़र्क हो सकते हैं. That is what we mean when we say that ethical standards or individual ethics, आपके लिए क्या सही और मेरे लिए क्या सही, would vary from person to person. आपके लिए फ़र्क होगा, मेरे लिए फ़र्क होगा. Would vary from situation to situation, meaning एक सिचुएशन में जो चीज़ सही होगी शायद दूसरी सिचुएशन में वो चीज़ सही ना हो. Finally, it is going to vary from culture to culture as well. एक कल्चर में चीज़ सही होगी, दूसरे कल्चर में चीज़ सही नहीं होगी. जो पाकिस्तान में चीज़ एक्सेप्टेबल होगी, एथिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल होगा, वो शायद चाइना के कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो, या शायद वो इंडियन कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो, या शायद वो बांग्लादेश के कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो. सो इन शॉर्ट, योर इंडिविजुअल एथिक्स आर गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आर गोइंग टू वेरी फ्रॉम सिचुएशन to situation, and they will also vary from culture to culture. Now, individual ethics are partly determined by culture and partly determined by the individual. Question is कि हमारी ethical standards बनते कैसे हैं? Are we born with it? Do we learn our ethical standards from the environment we're living in? क्या हमारे पेरेंट्स, अम्मी अबू हमको सिखा रहे होते हैं कि जी ये सही है ये गलत, या मुझे दोस्त मुझको बता रहे होते हैं कि ये करना सही और ये करना गलत, या मैं अपनी एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा होता हूँ? एक दफ़ा ठोकर खाऊंगा, अगली दफ़ा समझ जाऊंगा, मुझको खुद ब खुद अंदर से पता चलता है. There's an inner feeling or an inner voice that tells me that this is right and this is wrong. That's basically the question. Now, individual ethics, the research says, or people or scientists say that individual ethics is primarily determined, one, by culture and two, by the individual themselves. कुछ लोग जनरली सही चीज़ों की तरफ माइल होते हैं, एंड देन देयर आर अदर्स जो कि गलत चीज़ों की तरफ माइल होते हैं, एंड देन देयर इज अ सोसाइटी इन जनरल और द कल्चर इन जनरल विच सॉर्ट ऑफ गिव्स द सिग्नल्स टू इंडिविजुअल्स एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो इंडिविजुअल एथिक्स आर डिटरमिन्ड बाय द इंडिविजुअल देमसेल्व्स, क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत, एंड द कल्चर इन विच दे आर लिविंग इन, क्या चीज़ सही होगी और क्या चीज़ गलत होगी, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और करनी चाहिए और क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है और नहीं करनी चाहिए.
Now, when we're talking of individual ethics, what happens generally is that जो चीज़ सोसाइटी में acceptable ethical behavior consider की जाती है उसके बारे में automatically law बन जाता है. For example, the earlier example that I gave you of theft, society generally believes or individuals living in society generally believes that theft is wrong or stealing is something which should not be done. It's not a positive behavior. People should stay away from it. That's what everybody thinks. Now, since it's an acceptable ethical behavior कि जी stealing नहीं करनी चाहिए या stealing is unethical, you automatically start making laws with respect to it. For example, stealing is unethical. To enforce this behavior कि जी जो stealing नहीं करनी है, we make laws कि जी जो बंदा चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, he is going to go in jail for these many months or for these many years, or the government is going to do this to that person. So what happens is कि जो भी आपके एक्सेप्टेबल एथिकल बिहेवियर्स होते हैं आप उनके रेफरेंस से लॉज बना लेते हैं. ठीक हो गया. फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए. ना ओवर स्पीडिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यूर ओवर स्पीडिंग तो आपको गाड़ी पर कंट्रोल नहीं होता है. एंड इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर कार देन मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन. अल्लाह ना करे यू कैन गेट इनटू एन एक्सीडेंट एंड आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं. अल्लाह ना करे यू कैन हिट समबडी एंड इंजर समबडी एल्स. नाउ it is generally accepted that overspeeding नहीं करनी चाहिए और इसी रेफरेंस से उन्होंने लॉ बना दिया कि जी to ensure that people don't overspeed they've made a law कि अगर कोई overspeed करेगा तो उसको टिकट इशू किया जाएगा, उसको चलान इशू किया जाएगा, so that overspeeding is discouraged. So what happens in society is कि जो भी आपके acceptable ethical behaviors होते हैं या acceptable behaviors जो भी किसी भी society के होते हैं उसके लिए government या individuals जो हैं वो laws बना देते हैं so that उस ethical behavior को encourage किया जाए और उसके against जो भी unethical behavior है उसको discourage किया जाए. Now this is very easy, right? समझ में सब बातें हमें आ रही हैं. कितनी आसान है. एथिक्स ये है, अनएथिकल ये है, बिजनेस एथिक्स ये हैं, लॉज भी बन जाते हैं जो कि आपके एथिकल बिहेवियर्स को इन्फोर्स करते हैं. बट कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि यू गेट टू नो अ स्टोरी कि जी somebody was involved in stealing. ओके स्टीलिंग इज़ वेरी रॉन्ग, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, nobody should do it. Then you get another story that जिस बंदे ने स्टील किया था he had 5 kids or 4 kids or 3 kids or he had kids and उसके पास खाना नहीं था और उसके पास नौकरी नहीं थी and his kids were very sick and he didn't know what to do and he couldn't give them food or take them to the hospital. So वो बेचारा जो था he was forced by circumstances and forced by situations to do what he did. Now what will happen is that some of us will start having a softer heart and we'll say नहीं it's not that easy to say कि stealing गलत है. अब situation ही ऐसी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे हैं, क्या करता, लोग आजकल किसको पैसा देते हैं. There's nobody gives charity to anybody these days. शायद अगर उसे छोटी चोरी की है 1-2 हज़ार रुपए कर लिए तो क्या बड़ी बात हो गई, वो मजबूर था. Now what is happening to us is that depending upon the information that we're getting of that particular action of that particular person, we have a different view to it. जब हमारे पास information complete नहीं थी we said no stealing is wrong. लेकिन जब हमारे पास information सारी आ गई then we say कि अच्छा पता नहीं शायद. Now that is when the laws are unambiguous. अगर वो बंदा जिसके बच्चे भूखे हैं, जिसको आप हॉस्पिटल अपने बच्चों को नहीं ले जा सकता, अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल जाना है. That means that the law is clear. You steal, you go to jail. However, what is unclear is the situation. Meaning कि आपके laws
एथिकल स्टैंडर्ड्स या बिहेवियर्स के बारे में बहुत क्लियर हैं, लेकिन सिचुएशंस जो होते हैं वो एम्बिगुअस हो जाती हैं, वो क्लियर नहीं रहती हैं, वो या ब्लैक या वाइट नहीं होती, वो बहुत सारी ग्रे एरियाज में सिचुएशंस आती हैं। एंड देन यू आर अनश्योर कि जी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं सही कहूँ या गलत कहूँ, जस्ट कहूँ या अनजस्ट कहूँ, फेयर कहूँ या अनफेयर कहूँ। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट all of us would have a separate set of ethical standards. हमारे सबके based on the interpretation of the situation, based on the type of information that we are getting, based on the number of facts that we are getting, our analysis of the situation will vary. And since it will vary, why will it vary? Just because situation clear नहीं है। मेरे ख्याल से उसको स्टील नहीं करना चाहिए था, चाहे उसके बच्चे भूखे हों या प्यासे हों या बीमार हों। शायद किसी और के लिहाज से छोटी चोरी जायज़ बन जाती थी बिकॉज वो मजबूर था। So what I mean to say here is that the laws are unambiguous, but the situations can be in a way whereby आपको पता नहीं चलता कि इस सिचुएशन, जब ये सिचुएशन आपके सामने आई है तो आप किस किस्म का डिसीजन लें। Now again same question that I said earlier as well, कि हम सब फ़र्क ethically फ़र्क क्यों सोचते हैं? Same country, same air, more or less same religion, same type of food, सब चीज़ें तो सेम हैं, लेकिन हमारा सोचना ethical standards, ethical behavior के बारे में सोचना is very different. For example, I find littering your country as unethical. मतलब मैंने आइसक्रीम खाई, शीशा नीचे किया और रैपर बाहर फेंक दिया. This action of mine, as far as I'm concerned, is completely unethical. You cannot litter your country. आप या तो गाड़ी में रख लीजिए या अपना गाड़ी रोकिए डस्टबिन के पास या गार्बेज बिन के पास और गार्बेज में फेंक दीजिए. For a lot of us in general, eating, throwing the wrapper outside the window, we don't even think about it. Chewing gum खाई, उसका रैपर खोला, शीशा नीचे किया, विंडो के बाहर फेंक दिया. क्या हमने कभी सोचा? और अगर आप उनसे पूछे भी तो क्या फर्क पड़ता है? सब फेंक रहे हैं, मैं भी फेंकूंगा. Everybody is doing it. Why should I not? These are the reactions or the answers you get when you ask them कि भाई आप क्यों करते हो? गाड़ी में रख लो, जेब में डाल लो, बैग में डाल लो. Question same thing. Why do all of us think differently? हमें तो एक जैसे सोचना चाहिए. The reason for that is in this slide. We think differently or we have individual different ethics because our sources of individual values and codes are different. जब बच्चा पैदा होता है, first thing बड़ा हो रहा होता है, parents बताते हैं. बच्चा exaggerate कर रहा होता है, आप उसे कहते हो बेटा exaggeration सही नहीं है. बच्चा एक दफ़ा झूठ बोलता है, उसे कहते हो नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते हैं. बच्चा जो है रैपर बाहर गाड़ी से बाहर फेंकता है, कहते हैं नहीं अपने मुल्क को साफ रखते हैं. सो योर फर्स्ट सोर्स जहाँ से आपको एथिकल इनपुट्स आ रही होती हैं, दैट इज़ योर पेरेंट्स, जो कि आपको बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है. बड़े जब कमरे में आए तो उनको सलाम कीजिए, बड़े जब कमरे में आए तो कुर्सी से उठ जाइए, कोई फीमेल आती है तो आप खड़े होकर उसको जगह दे दीजिए. दीज आर ऑल स्टैंडर्ड्स, दीज आर ऑल बिहेवियर्स, दीज आर ऑल एक्शंस दैट आर parents teach us. They differentiate between right and wrong to us. ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, सच बोलना सही है, झूठ बोलना सही नहीं है, चोरी करना सही नहीं है, अपना खाना जो आपकी प्लेट में है वो ख़त्म करना सही है. So basically they're the ones जो कि आपकी first source, primary source होते हैं, जो कि individuals को बताते हैं या बच्चों को अपने बताते हैं कि जी क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है. Now, as the child grows up, he starts or she starts going to school. Now, once you start going to school, you start interacting with other people of your same age, and that's the time जहाँ पर आप अपने peers से या अपने colleagues से सीखना शुरू करते हैं. That's the point जहाँ पर आप उनसे बात करके आपको पता चलता है कि और लोग क्या सोचते हैं, उनके लिहाज से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही. And then again, आपकी जो teachers होते हैं या आपकी जो स्कूल में जो आपके faculty या कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो
आपकी फैकल्टी होती है वो आपको बता रही होती है, बट प्राइमरली एज यू ग्रो अप इट्स बेसिकली द पीपल दैट यू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स जो कि आपको इनपुट देते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है ना। जब आप और बड़े हो जाते हैं तब आप क्या सोचने लगते हैं, फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस से करते हैं। बहुत दफ़ा आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन आई होगी कि आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ये ना करो, and you say and you think, not really say actually, you say इनके साथ सही नहीं हुई होगी, मैं जब करूँगा तो फिर सही होगी। ये आप सोचते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि अगर इनके साथ ख़राब हो तो मेरे साथ भी बुरा हो। These are literal reactions that go in your mind. Now when you grow up, what you start doing is you start assuming or you start learning from your own experiences. जो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे उससे सीखोगे। चीटिंग पेरेंट्स ने बताया सही नहीं है, सबने बोला, पीयर्स ने भी बोला कि सही नहीं है, फ्रेंड्स ने भी बताया कि नहीं भाई चीटिंग नहीं करो तो बेहतर है, लेकिन आपने चीटिंग की। जब आपने चीटिंग की और आप पकड़े गए और आपका पेपर कैंसिल हो गया तो फिर आपने तौबा की कि नहीं अगली दफ़ा मैं चीटिंग नहीं करूँगा। दैट इज़ योर थर्ड टाइप ऑफ इनपुट which sort of molds your ethical behaviors or ethical standards. So primarily these are the three different sources जो कि किसी भी individual के ethical behavior को mold करती है या बनाती है या उसकी basis होती है। Parents, peers are basically individuals जो कि आपके हम ख्याल या आपके साथ के जो लोग होते हैं, and your experiences. In addition to these three sources, there are certain priorities as well, which sort of define कि आप किस तरीके से सही और गलत में differentiation करते हैं. For example, if financial gain is your priority, आपकी thinking बहुत फ़र्क हो जाती है, then you just might assume कि taking a bribe is the right thing to do because आपको तो सिर्फ पैसा ज़िंदगी में चाहिए. All that you need is money. All that you want is money. All that you want to do in your life is to make more and more and more of money. सो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ब्राइब लूँगा, मैं तो लोगों से पैसा लेकर काम करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ. Similarly, if your priority is family and friends, then maybe money is not that big a priority for you. Then शायद आप पैसा लेने से पहले ये ज़रूर सोचें कि मैं भी पैसा ले रहा हूँ, इससे मेरे बच्चों को कल को पता चला तो वो क्या सोचेंगे, या मैं ये काम इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहा, या मेरी फैमिली को ये नहीं पता चलना चाहिए, ये सही चीज़ नहीं है. सो अगेन किसी भी इंडिविजुअल की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं, वो बहुत अफेक्ट करती हैं कि वो किस तरीके से एथिकली वो मैटर ये करती हैं या अफेक्ट इस तरीके से करती हैं कि इंडिविजुअल के जो बिहेवियर्स हैं वो किस चीज़ को सही या गलत समझता है. सो दीज आर द 5 डिफरेंट थिंग्स, पेरेंट्स, पीयर्स एंड एक्सपीरियंस. आपके प्राइमरी इनपुट सोर्सेज होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को या आपके एक्शंस को या आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं. एंड देन योर प्रायोरिटीज़, फाइनेंशियल गेन्स होंगे तो आप फ़र्क तरीके से सोचेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो शायद आपका सोचना जो है या आपके एक्शंस जो हैं या वो आपके बिहेवियर्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ क्या चीज़ गलत और क्या चीज़ सही है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं. Now what we're going to talk about is we're going to now focus specifically on business ethics from this point onwards in the lecture. जब हम business ethics की बात करते हैं और इसको एक managerial perspective से देखते हैं कि business ethics एक manager के perspective से क्या है या business ethics एक organization के perspective से क्या है, so वो basically क्या चीज़ होती है, वो सारे standards, वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कि एक मैनेजर के काम को गाइड करते हैं. So basically all those standards that sort of guides the manager in terms of what is the right action and what is not a right action, what is a just action and what is not a just action, is the managerial perspective of business ethics. Now for example जब आप business ethics की बात करते हैं और एक उसको managerial perspective से देखते हैं, it's going to include behavior towards 3 basic things. First up are employees. Manager जो है एम्प्लॉयज़ के साथ क्या सलूक करता है या कैसा बिहेव करता है. देन
एम्प्लॉयज़ जो हैं जनरली स्पीकिंग वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ कैसे हैं. एंड व्हेन आई से एन एम्प्लॉयर आई ऑटोमेटिकली मीन एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीबडी एल्स. बिहेवियर टुवर्ड्स customers, towards suppliers, towards investors, towards everybody who's interacting with the organization. Now at this point in time I want you to remember something from our previous lectures. Who are these others? These others are all your stakeholders. Do you remember your definition for stakeholders? Give you a minute. Yes, stakeholders are all those individuals inside or outside the organization which have any interest in the organization. Those are called as your stakeholders. And when I say behavior towards others, I basically mean everybody else other than employees and other than the employer. Everybody else who will be a stakeholder is what we're talking about when I say behavior towards others. Now, what do I mean when I say behavior towards employees? I basically means कि आप किस तरीके से उनको हायर करते हैं, आप फायरिंग के वक्त क्या प्रोसीजर्स रखते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स आपके फायरिंग के हैं with respect to wage and with generally respecting that particular individual. When I talk about organizations, I basically mean कि आपका behavior towards आपके employer की तरफ आपका behavior किधर है. First up, it's going to be conflict of interest. आपका conflict of interest क्या है, क्या नहीं है, क्या आपकी organization और आप का same goal है. अगर सेम गोल नहीं है, टू डिफरेंट गोल्स हैं, देन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. एंड फाइनली वी टॉक अबाउट कि इंडिविजुअल या एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे यूज़ कर सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग सप्लाईज, इन टर्म्स ऑफ पैडिंग द एक्सपेंस अकाउंट, और इन टर्म्स ऑफ गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू योर एम्प्लॉयर और टू योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कस्टमर्स एंड कंपेटिटर्स, और व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टॉक होल्डर्स और एवरी अदर पर्सन इन्वॉल्व विद योर कंपनी, तो हम जब हम बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स की बात करते हैं, देन बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, या कस्टमर्स को आप सही तरीके से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या उसकी प्राइसिंग आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दैट इज़ व्हाट अदर्स मीन. एंड आई हैव जस्ट गिवन यू अ फ्यू एग्जांपल्स कि जी अदर्स के साथ आप किस किस्म के एथिकल इश्यूज आप डील कर सकते हैं. नाउ ethical, as I said earlier as well, you might feel that I'm repeating a few things, but then repetition means that one, these things are important, and repetition means कि बार बार कहने से आपके जहनों में एक बात settle in हो जाती है, समझ आ जाती है. Ethical behavior is subjective, one, and it is subjected to opinion. Two things. One up, subjective. Everybody will think differently about one issue. सब लोग एक तरीके से नहीं सोचेंगे. एक पॉइंट होगा, सबके अलग ओपिनियंस होंगे. आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ दिस वेरी थिंग अर्लियर. सेकंड, इट्स सब्जेक्टेड टू ओपिनियन. मेरा ख्याल ये है, आपका ख्याल मुझसे फ़र्क हो सकता है, इन साहब का ख्याल हम दोनों से फ़र्क हो सकता है. सो जब भी हम एथिक्स की बात करेंगे, हमें ये सोचकर एथिक्स की बात नहीं करनी कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है या जो आप समझ रहे हैं वही सही है. नहीं, ये नहीं हो सकता. Every one of us will have a different ethical perspective. Why? One, because it's a subjective thing. सब लोग अपने अपने लिहाज से चीज़ों के बारे में सोचते हैं और सबका अपना अपना ओपिनियन होता है और वो उसको अप्लाई करना चाहते हैं. नाउ जब भी हम एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं या हम ये सोचते हैं कि किसी का बिहेवियर एथिकल है या नहीं है, या हम ये कहते हैं कि जी कोई बंदा का कोई एक्शन या काम कर रहा है, तो हम उसको कैसे जज करें कि ये चीज़ सही है या गलत है. देयर इज़ अ प्रोसेस टू इट. फर्स्ट अप, you gather facts and figures, you gather relevant factual information. आप information gather करते हैं, लोगों से पूछते हैं, interviews करते हैं, उससे पता किया, जिसने किया उससे पता किया, जो उसके साथ बैठा है उससे पता किया, to really find out कि क्या हुआ. We're not talking statements, we're talking facts. जो चीज़ हुई उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं. So you basically the first step in assessing any ethical behavior कि सही है या गलत है, the first thing that you do is basically gather facts about that particular behavior.
The next step is that you analyze the facts to determine the most appropriate moral value. फिर आप उन फैक्ट्स को जब इकट्ठा कर लेते हैं, then you start analyzing them. आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और ये उन फैक्ट्स के बारे में ये मालूम करना शुरू कर देते हैं कि जो काम उस बंदे ने किया, जो कि आपको फैक्चुअली पता है, क्या वो मॉरली एक्सेप्टेड है या नहीं है, क्या वो एथिकल. एंड व्हेन आई से moral is just another word for ethics. Moral या morality also means right, wrong, just, unjust. So आप उन फैक्चुअल फिगर्स पर ये एनालाइज करते हैं कि जो उस बंदे ने काम किया, क्या वो मॉरली राइट है या नहीं है, क्या वो एथिकली राइट है या नहीं है, या उस काम के बारे में हमारी मॉरल वैल्यूज क्या कहती हैं, या हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में. जब आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लिया, विच वॉज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली और उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपने एनालाइज कर लिया टू सी कि जी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, या एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, या आपकी मॉरल वैल्यूज के बारे में क्या है, देन यू मेक एन एथिकल जजमेंट बेस्ड ऑन द राइटनेस और द रॉन्गनेस ऑफ द एक्टिविटी और पॉलिसी. मतलब कि जब आपने पहले 2 स्टेप्स कर लिए, उसके बाद आप एक एथिकल जजमेंट करते हो या एक डिसीजन लेते हो कि जी बंदे ने ये काम किया, उस पर हमारी मॉरल वैल्यूज ये कहती हैं और उसकी बेसिस पर मैं ये समझती हूँ कि इस बंदे ने जो काम किया वो गलत किया, या उसको नहीं करना चाहिए था, या ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है. फॉर एग्जाम्पल, बंदे ने स्टील किया, स्टीलिंग के बारे में आपने फैक्चुअल जजमेंट्स हासिल की. कैसे हासिल की? आपने उस बंदे से बुलाकर सबसे पहले पूछा, उसके बाद जिस बंदे की चोरी हुई आपने उससे पूछा, फिर जो आपके ऑफिस में वेरियस कैमरास लगे थे, CCTVs लगे थे, आपने उनकी रिकॉर्डिंग लेकर आपने देखी कि इस बंदे ने चीज़ उठाई भी है या नहीं उठाई. एंड फाइनली अगर कोई आई विटनेस है तो उसको भी बुलाकर आपने पूछ लिया. नाउ आई विटनेस एंड CCTV इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बंदे ने चोरी की या नहीं की. That is step 1. Step 2 is कि जब आपको factual information आ गई तो then what you do is कि आप इसको अपनी morality से compare करते हो. हमारे moral standards, हमारे ethical standards और हमारे social norms सबके सब यही कहते हैं कि stealing under any circumstances is wrong, is not acceptable, is not justified. थर्ड स्टेप में क्या करूंगी? बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 थिंग्स दैट आई हैव डन, आई विल मेक अ डिसीजन. आई विल से कि नहीं, इसने चोरी की है, इसने गलत काम किया है और मैं इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से फारिग कर देती हूँ या फायर कर देती हूँ. एंड देन अगेन इट इज ऑल्सो अ कंपनी पॉलिसी कि अगर इफ समबडी इज कॉट स्टीलिंग देन ऑटोमेटिकली हम उसको फायर कर देंगे या कंपनी से निकाल देंगे. ना मेरी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. चोरी की, चोरी पकड़ी गई, चोरी के बारे में स्टैंडर्ड सिंपल हैं, सीधे हैं. हमने एम्प्लॉय से कहा कि यू आर नो लॉन्गर वर्किंग विद अस. हाउएवर थिंग्स आर ऑलवेज नॉट दिस ईजी, थिंग्स आर ऑलवेज नॉट दिस स्मूथ, थिंग्स आर ऑलवेज नॉट दैट ईजी टू फाइंड आउट एंड एनालाइज. व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम आपके पास क्लियर कट फैक्ट्स नहीं आते, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं आती. पीपल डोंट टॉक. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अगर CCTV की फुटेज ना होती तो फिर क्या होता? फिर तो मुझे नहीं पता चलता कि किसने चोरी की, या कोई आई विटनेस ना होता तब भी मुझे ना पता चलता. हाँ, मुझे ये ज़रूर पता चलता कि एक चीज़ जो है वो ऑफिस से गायब हो गई है. किसने गायब की? 100 अदर पीपल वर्किंग. कैसे गायब है मुझे तो नहीं मालूम. सो एवरी टाइम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट ईजी टू गैदर. इट इज़ नॉट ईजी कि हम फैक्ट्स और फिगर्स को ले सकें या जमा कर सकें. कई दफ़ा मिल जाते हैं, कई दफ़ा नहीं मिल जाते. Second is that moral values, that ऐसी moral values, ऐसे ethical standards जिसके बारे में सब लोग agree करें, उससे बड़ा मसला हो जाता है. चोरी is something जिस पर सब लोग agree करेंगे, सब लोग कहेंगे कि गलत है. बट ऐसे बहुत सारी situations, ऐसे बहुत सारे behaviors हैं जहाँ पर individuals एग्रीड अपॉन नहीं होते. कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं गलत है. कुछ ने कहा कि होना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं होना चाहिए. सो इस पूरे जो असेसमेंट, एथिकल बिहेवियर के असेसमेंट के प्रोसेस में आप 2 जगह फंसते हैं. पहले स्टेप 1 में जहाँ पर आपको इन सिचुएशंस जहाँ पर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स ना मिले, यू कैन नॉट असेस एथिकल बिहेवियर. 2, अगर आपके मॉरल वैल्यूज के बारे में एवरीबडी डजंट एग्री ऑन योर मॉरल वैल्यूज, अगेन देन यूर इन डीप ट्रबल. बिकॉज फिर कोई क्लियर कट वे नहीं होगा. आधे लोग कहेंगे सही है, आधे लोग कहेंगे नहीं सही है. व्हाट डू आई डू? शुड आई लिसन टू देम और शुड आई लिसन टू दिस ग्रुप? जब फर्स्ट 2 स्टेप्स सही नहीं होंगे तो आपकी एथिकल जजमेंट या आपका एथिकल डिसीजन विल नॉट बी दैट ईजी टू मेक. और देन अगेन अगर आप ले भी लेते हैं वो डिसीजन,
then you will always be a little unsure कि जो मैंने ethical decision लिया क्या वो सही था या क्या वो गलत था, क्या मैंने सही किया ये करके या मुझे ये नहीं करना चाहिए था. So इस पूरे प्रोसेस में जो कि आपकी स्लाइड में आ रहा है, इसमें सबसे मेजर मसला या सबसे प्रॉब्लमैटिक एरियाज फर्स्ट हो सकते हैं गैदरिंग ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड अग्रीड अपॉन मॉरल वैल्यूज. नाउ इस मसले से जब आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के इश्यूज आते हैं या आपको एग्रीड अपॉन मॉरल वैल्यूज़ के इश्यूज आते हैं तो आप एथिकल नॉर्म्स की बात करते हैं. एथिकल नॉर्म्स अगेन आर दोज, व्हेन आई से एथिकल नॉर्म्स व्हाट डू आई मीन, आई बेसिकली मीन्स कि ऐसे एथिकल बिहेवियर्स जो जनरली नॉर्मली एक्सेप्टेड हों, जिसके बारे में कोई इश्यूज ना हो, सब कहते हों कि यह सही है या गलत है, उसको आप एथिकल नॉर्म्स कहते हैं. और किसी भी एथिकल बिहेवियर की असेसमेंट के लिए आपके पास ये 5 चीज़ें होती हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे होते हो एंड देन यू फिगर आउट कि क्या आपका बिहेवियर सही था या गलत था. ना वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट अप इज यूटिलिटी. What do I mean when I say utility? Act of optimizing benefits for those who are affected. So utility basically means कि आप ये काम या ये behavior इसलिए करते हैं क्योंकि इस behavior को करने से आपको फ़ायदा मिलता है. ठीक हो गया? That is your first step. किसी चीज़ के कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचते हो कि इसकी यूटिलिटी है या नहीं है. यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, इससे किसका भला हो रहा है, हु इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, या आप किसकी बेनिफिट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो. The second thing is rights. Does it respect the rights of those involved? कोई भी behavior आपका, कोई भी action आपका, is it right? And when we say right, what do we mean? कि does my action respect the rights of those involved or not? Third thing is justice. Whatever I'm doing, is it consistent with what is fair? जो मैं कर रही हूँ क्या वो जो हमारी फेयरनेस की डेफिनेशन है उससे कंसिस्टेंट है या नहीं है. केयरिंग, इज माई एक्शन और माई बिहेवियर कंसिस्टेंट विद पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ईच अदर. जो मैं काम कर रही हूँ क्या वो जो हमारे आपस के ताल्लुकात होते हैं, जो आपस के रिलेशनशिप्स होते हैं, या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ है क्या वो उसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है. Now, before I go on, what I mean to say when I'm talking of these 4 things is चाहे caring हो, चाहे justice हो, चाहे आपका utility हो या rights हो, these 4 become the deciding factors किसी भी action को या किसी भी behavior को जज करने के लिए. बेसिकली आप इन 4 चीज़ों पर आप किसी भी बिहेवियर को जज करते हो. I'll give you an example. The example is this कि जी let's say somebody XYZ went to Lahore on an office trip. ओके, लाहौर चला गया. अब लाहौर जाने के लिए उसकी कंपनी ने उस बंदे से कहा कि जी आप लाहौर जा रहे हैं, आपका जितना एक्सपेंस होगा, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो कंपनी बेयर करेगी. समझ में आता है? दैट मीन्स कि जब वो लाहौर गया और उसने एक बिजनेस डिनर किया और उसकी कॉस्ट 5,000 रुपीज़ आई, वो एक्सपेंस वो कंपनी को चार्ज कर सकता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट डे उसने क्या किया, वो अपने दोस्त को खाने पर लेकर गया ऑन purely it was a social gathering or a social dinner जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ गए. It had nothing to do with the business, it had nothing to do with the organization. और उसने वहाँ पर भी 5,000 रुपये खर्च किए. और जो सेकेंड डे वो खाना अपने दोस्त के साथ खाया, उसने वो 5,000 भी अपने कंपनी को चार्ज कर दिए और कंपनी के अकाउंट से वो पैसे दिए. नाउ क्वेश्चन है इसका, क्या उसका ये बिहेवियर कि जो उसने सेकेंड डे डिनर किया उसको कंपनी पर चार्ज कर दिया, इज दिस एथिकल और नॉट? नाउ अगर हम अपने फिगर पर जाएं जहाँ पर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको मॉरल वैल्यू से जज करते हैं और फिर एक एथिकल जजमेंट करते हैं, तो जो मैंने अभी एग्जांपल दी शायद ये तीनों स्टेप्स इस पर अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो, बिकॉज हमारे पास तो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ना कैमरा है, ना आई विटनेस है, हमें तो पता ही नहीं कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते. जब कोई इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल फिगर्स ही कलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किस चीज़ के बारे में एथिकल स्टैंडर्ड्स करेंगे? क्या दोस्त के साथ जाना गलत है? क्या
क्या वो दोस्त बिजनेस रिलेटेड बात वो लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हमें तो नहीं मालूम हो सकता। सो आप उस प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते। सो अब इस सिचुएशन में क्या करें, हम कैसे पता करें कि उस इंडिविजुअल का ये बिहेवियर एथिकल था या नहीं था? उस केस में हम ये 4 चीज़ें उस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसके बिहेवियर में कोई यूटिलिटी थी या नहीं थी। जब वो सेकेंड डे अपने फ्रेंड को खाने पर लेकर गया और उसका बिल उसने कंपनी को चार्ज किया, उसमें उस इंडिविजुअल के लिए यूटिलिटी थी, बिकॉज ही वॉज बेनिफिटिंग। उसको बिल नहीं देना पड़ा अपनी जेब से, कंपनी ने बिल दिया उस खाने का। हावेवर किसी और को उसकी यूटिलिटी नहीं थी, नादर कोवर्कर्स को, ना उसके मैनेजर को, ना उसके पीयर्स को, ना उसके कॉलीग्स को, सिवाय उस एक इंडिविजुअल को जिसको फायदा हुआ इस पर्टिकुलर एक्शन से। देयर वाज no utility for that particular action. Second, does it respect the right of those involved? क्या उसके इस एक्शन से जो बाकी स्टेक होल्डर्स से उनकी रिस्पेक्ट होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज जब वो कंपनी का पैसा गलत जगह अपनी प्राइवेट सोशलाइजिंग में यूज़ करेगा, देन दैट मीन्स स्टॉक होल्डर्स का पैसा यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स ही की तो कंपनी है। स्टॉक होल्डर्स को उनका उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या उतना प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। सो इट इज़ नॉट, जो राइट्स की आप बात करते हैं, इट इज़ ट्रैम्पलिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। थर्ड थिंग, क्या ये जस्टिस है? इज इट कंसिस्टेंट विद व्हाट इज फेयर? नो, इट इज़ नॉट फेयर, because you're not being fair to your stockholders, you're not being fair to your colleagues, you're not being fair to the employees, you're not being fair to your manager. जिस काम के लिए मैनेजर ने आपको पैसे दिए, आपने उस काम के लिए यूज नहीं किए, so you're just being, basically you're being unfair. And finally, caring. Is it consistent with people responsibility to each other? क्या ये इन अकॉर्डेंस है जो उस इंडिविजुअल का उसी कंपनी के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि कंपनी ने उस इंडिविजुअल को ट्रस्ट करके उसको पैसे दिए, एंड द कंपनी सेड कि जी आपका जितना ऑफिस रिलेटेड काम होगा उस पर आप ये पैसे यूज करें। दैट मीन्स दैट द कंपनी ट्रस्टेड दैट इंडिविजुअल कि वो इंडिविजुअल सिर्फ ऑफिस रिलेटेड कामों में वो पैसा खर्च करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने में वो नहीं खर्च करेगा। सो दैट मीन्स कि जो लास्ट एस्पेक्ट है केयरिंग का, ये भी खत्म हो गया। आप इस इंडिविजुअल के इस बिहेवियर को जज करें कि क्या अगर वो अपने फ्रेंड को खाना खिलाने लेकर जाता है और कंपनी का पैसा से उसको पे करता है उस खाने के बिल को, तो क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? और जो अभी हमने ये जस्टिस, केयरिंग और अभी हमने यूटिलिटी और राइट्स की बात की, तो इसमें से चारों में से कोई चीज उसके एक्शन को जस्टिफाई नहीं करती। ना यूटिलिटी है, ना राइट्स है, ना केयरिंग है और ना जस्टिस है। दैट मीन्स कि जब चारों चीज़ें अगेंस्ट जाती हैं, तो इट बेसिकली मीन्स कि जी उसका एक्शन जो है वो अनएथिकल है। आप उसको एथिकल किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से और किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट। दिस नेक्स्ट स्लाइड ऑफ आवर्स रिलेट्स टू फिगर 3.2 इन योर बुक्स। नाउ डोंट वरी अगर वो फिगर इतना क्लियर नहीं है। दैट फिगर बेसिकली सेज कि अगर जो अभी हमने 4 क्राइटेरियाज पीछे पढ़े, यूटिलिटी, रिस्पेक्ट, केयरिंग एंड जस्टिस, अगर इन चारों क्राइटेरियाज में आपका आंसर नो है, जैसे कि हमारे केस एग्जाम्पल में जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, हैविंग डिनर विद योर फ्रेंड्स, उसमें हम चारों क्राइटेरियाज में हमने कहा कि नहीं, गलत किया उसने, इस केस में उसका एक्शन कंप्लीटली अनएथिकल होता है। हावेवर एक ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है जहां पर आप 2 क्राइटेरिया पे कहें कि सही किया, 2 क्राइटेरियाज पे कहें कि सही नहीं किया। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे एंड यू विल सी कि अच्छा कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। क्या हम जस्टिस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या यूटिलिटी के बारे में हम सोचें या केयरिंग के बारे में हम सोचें? एंड यू विल सी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ किसको ओवरराइड कर सकती है, या किस चीज़ के बारे में हम ना सोचें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या पता इस इंडिविजुअल को फोर्स किया गया हो, क्या पता कंपनी पॉलिसी ऐसी हो कि इसलिए इस इंडिविजुअल ने ऐसे कर लिया हो, या देयर वर सम अनफोर्सीन फैक्टर्स और अनफोर्सीन प्रेशर्स जिसकी वजह से इस इंडिविजुअल ने कर लिया हो। एंड देन वी सी कि अच्छा टिल्ट किसकी तरफ ज़्यादा है। अगर यूटिलिटी और केयरिंग इंपॉर्टेंट है तो फिर हम उसकी तरफ सोचेंगे और जस्टिस को और राइट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। एंड फाइनली you have a situation where it is yes on all criterias कि जी ये
करना चाहिए था क्योंकि ये यू वर फॉलोइंग, यू वर बीइंग जस्ट, आप सबकी राइट्स को देख रहे थे, इट वाज ऑप्टिमाइजिंग बेनिफिट्स फॉर एवरीबॉडी, एंड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स अदर पीपल आप उसके बारे में भी देख रहे थे. एंड इफ इट इज येस ऑन ऑल क्राइटेरियाज देन दैट मीन्स दैट योर बिहेवियर, योर एक्शन इज कंप्लीटली एथिकल एंड कंप्लीटली राइट एंड कंप्लीटली जस्ट. सो कोई भी एथिकल बिहेवियर, कोई भी एक्शन हो या कोई भी बिहेवियर हो, उसको जज करने के लिए कि क्या वो सही है या क्या वो सही नहीं है, आप इन 4 क्राइटेरियाज को इमीडिएटली उस पर अप्लाई कर लेते हो. एंड इफ इट इज अ नो ऑन ऑल क्राइटेरिया देन दैट बिहेवियर इज not ethical. If it is half no and half yes, then you further analyze and see कि कौन सी चीज़ important है, किसको override कर सकते हैं, किसको override नहीं कर सकते. And if it is yes on all criteria, then it automatically means that your behavior is justified, it is fair, it is ethical. Now what we're going to say is, अब चीज़ें तो हमने समझ ली, हमने मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि मैनेजर के पर्सपेक्टिव से उसकी एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. जब वो हायर करे तो वो सही तरीके से हायर करे, इन केस वो फायर कर रहा है तब भी एम्प्लॉय को बताए, उसको ये बताए कि उससे क्या गलत किया एंड देन उसको फायर करे. वेजेस के बारे में भी ही शुड बी केयरफुल इन द सेंस दैट जितना वो काम कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको वेजेस दो, या आप उसको टाइमली वेजेस दो, या ये ना करो कि आप उससे काम ज़्यादा करवाओ उसको वेज कम दो. सिमिलरली आप अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में भी बात कर रहे होते हो कि आपको देखना पड़ता है कि आप उनकी तरफ रिपोर्टिंग सही करो. जो चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है आप उसको वैसे ही रिपोर्ट करो. कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दो, उसकी प्राइस सही रखो, उसके बारे में कस्टमर को बताओ, सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए. सिमिलरली आप एम्प्लॉयर की बात करते हो तो जितना आपको काम दिया जा रहा है आप उसको सही तरीके से काम करो. यू बिकमिंग more responsible, you should not sort of take shortcuts into your work. ये सारी चीज़ें आपके ethical behavior के बारे में होती हैं. लेकिन कंपनी इन्फोर्स कैसे करे, कंपनी ये कैसे एम्प्लॉयज़ को बताए कि ये चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये एथिकली सही है, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स है, और ये चीज़ आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये एथिकली रॉन्ग है या ये मॉरली रॉन्ग है या इनको नहीं करना है. ये सब चीज़ें कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को रिटन कोड्स के थ्रू बताती है विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट. नाउ व्हाई इज अ रिटन कोड इम्पोर्टेंट? बिकॉज जब आप वर्बली चीज़ लोगों को बता रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं then उसका फ़ायदा नहीं होता टिल द टाइम दैट यू डू नॉट हैव थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट. राइट, फॉर एग्जाम्पल कितनी दफ़ा आपको वर्बल रिमाइंडर्स आना शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल बैंक वाले आपको कॉल कर रहे होते हैं कि जी आपने पेमेंट करनी है. आप कभी फ़ोन उठाते हो, कभी फ़ोन बंद कर देते हो, कभी फ़ोन सुनते ही नहीं हो, कभी फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो. लेकिन जब वो चीज़ इन राइटिंग आ जाती है देन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स लीगल. कल को आपका बैंक आपको कोर्ट वाले जाकर कह सकता है कि जी इस बंदे ने हमारी पेमेंट करनी थी, ये हमने उसको लेटर लिखा, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. वर्बली की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती. आज मैं आपको कुछ कहूँगी, कल मैं आपको कुछ और कह दूंगी, बट व्हेन आई डू समथिंग इन राइटिंग देन ऑटोमेटिकली इट हैज़ मोर लीगल वैल्यू एज कम्पेयर टू, एंड इट बिकम्स मोर फॉर्मल, it sort of gives a more important, it has a more important look as compared to when I say things verbally. So कंपनी कैसे इंश्योर करे कि उस कंपनी में ethical practices हो? First up, you should have written codes of ethics which is called as code of conduct or code of ethics. इसका फ़ायदा ये भी होगा कि एम्प्लॉई के जहन में there would be no ambiguity. एम्प्लॉई would be very clear कि कौन सी चीज़ acceptable है और कौन सी चीज़ unacceptable है या unethical है. And you need to implement these codes. ज़रूरी नहीं कि आपने एक पूरी बुक बना दी कि जी हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये चीज़ सही और ये चीज़ गलत. ठीक हो गया, बुक तो बन गई. अब इस बुक को बंद करके अगर you need to put it in a drawer then there is no use of it. You need to implement it, and the very first thing that you need to do when you're implementing your code of ethics or code of conduct is you need to bring it from top down. टॉप मैनेजमेंट जब तक एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगी, लोअर या मिडिल मैनेजमेंट भी नहीं करेगी. यू ऑलवेज लुक एट योर बॉस. अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल इन दिस केस इज दैट इफ योर बॉस इज कमिंग लेट, व्हाट विल हैपन टू यू? You're going to say, boss late आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी लेट आऊँगा. But if your boss is coming at 8:30 every day, you will try to come to your office 8:15 or maximum by 8:35. Why? Because your boss is already here in the office. That's what happens with ethical standards as well. Whatever standards you have, you should implement them from top down.
जब तक टॉप मैनेजमेंट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, उनको प्रैक्टिस नहीं करेगी और उनको यूज़ नहीं करेगी, लोअर मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट विल नॉट बी सीरियस अबाउट दोज एथिकल स्टैंडर्ड्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट companies implement their code of ethics or code of conduct statements from top management and then bring it downwards. Now this particular figure will basically tell you how important your values and your ethical standards are in an organization. Now your core principles and organization values come right in the middle, the yellow portion, and they're the ones which are unchanging. So whatever you think, आपके जो ethical standards होते हैं, nobody is going to steal from the company's account. That's an organizational value, or that's a core principle. That will remain unchanged, irrespective of how big or small your organization is, irrespective कि आप सिर्फ इस्लामाबाद में काम कर रहे हो या all over पाकिस्तान काम कर रहे हो, irrespective कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो या पूरी दुनिया में काम कर रहे हो. Your core principles and your core values will remain unchanged during the entire time your organization exists. इन core values और core principles की basis पर आप organizational objectives बना रहे होते हो, which are again they do not change over time, but sometimes they can change, but इनको हम इतना frequently change नहीं करते. And based on your organizational objective आप strategies और practices बनाते हो, और strategies और practice जो होते हैं वो बहुत frequently revised होती हैं. हमने ये objective achieve करना है, अगर हम यहाँ से इसको achieve नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, we make a new strategy, हम इसको यहाँ से achieve कर लेंगे. So basically your strategies are the ones, or your practices are the ones which changed very frequently. Your objectives are the ones जो कि change नहीं होते. जब आप एक दफ़ा चीज़ accomplish कर लेते हो तो आप अपने लिए नया objective set कर लेते हो. And finally the center of everything, the heart of the matter is that your core values and your core principles never change. और जब हम ethical standards और ethical principles या business ethics की बात करते हैं, that is very 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 much part of your core principles and your organizational values, which do not change at all over the entire existence of the organization. Now the question is that can business ethics be taught? क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं कि बिज़नेस एथिक्स क्या है? क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं कि चोरी ना करो? क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा है उसको आप गलत तरीके से यूज़ ना करें? क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं कि जो इनको झूठ ना बोलें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो चीज़ है उसको वैसे ही आगे बताएं? Now there are various people who think differently about this particular matter. कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सिखा सकते हैं, then there would be others who would say कि नहीं, एक बंदा इनहेरेंटली तौर पर, इन्नेट तौर पर या तो एथिक्स को फॉलो करता है, सही है, या गलत है जो कि एथिक्स को फॉलो नहीं करेगा. However, what generally people think is that a lot of time you can create situations in an organizations जहाँ पर आप sort of individuals को in force तो नहीं कह सकती, I can't say force, but आप individuals को इस तरीके की सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके के सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर they have no choice but to be ethical. Now ये आप कैसे करेंगे? First up, you need to remind them on and off कि आपको ethical decision making करनी है. आप कोई भी judgment करें, आप कोई भी decision making करें, आपने एक ethical decision लेना है, आपने सही decision कर लेना है जो कि morally right decision है. इस काम को करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए आपके जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की हमने बात की, कोड ऑफ एथिक्स की हमने बात की, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ यू हैव अ वेरी क्लियर सेट ऑफ एथिक्स रूल्स, इफ यू हैव अ वेरी क्लियर कोड ऑफ कॉन्डक्ट, देन आपके मैनेजर्स या आपके एम्प्लॉयज़ में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती. उनके लिए डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है. Second, you need to update on laws. जिस तरीके से बहुत दफ़ा गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है जो कि डिस्करेज करती है अनएथिकल प्रैक्टिसेस को, आपको ये बार बार देखना रहना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लॉज अपडेटेड रहें. कोई नया लॉ आ गया है, लेट्स से रिगार्डिंग रिपोर्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, सो आप इंश्योर करेंगे कि वो लॉ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो ताकि आपके मैनेजर्स और आपके एम्प्लॉयज़ उस लॉ को फॉलो करें.
Now you need to understand कि लॉ क्या करता है. लॉ बेसिकली ये करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ बाउंड्री कि आपने इसी बाउंड्री के अंदर काम करना है. एंड व्हेन यू हैव लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑटोमेटिकली वो एक बाउंड्री इंडिविजुअल के लिए बना देते हैं कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर जो काम है वो एथिकल है, इसके बाहर वो काम है जो अनएथिकल है. एंड दैट लॉ प्रोहिबिट्स और स्टॉप्स द पर्सन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर बाउंड्री. सो that's why laws are important, and that is why it is important that you update laws as and when they are required. So with this particular slide of ours, what we've done is we haven't finished the chapter as yet. We've just finished the ethics portion of the chapter. Now the next part of the chapter, which we will cover in lecture number 6, is about social responsibility or corporate social responsibility, or CSRS as we call it. However, before I move on to what CSR is and what corporate social responsibility is, let me very quickly recap what we did in these last 18 slides of ours. What we've done so far is that we have basically told you or discussed with you what ethics is. We've defined what ethics is, difference between right and wrong, just and unjust, fair and unfair. And then we've moved on to discuss ethical standards, ethics कैसे फॉर्म होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी इंसान में एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं. एंड वी सेड दैट फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई बच्चा व्हेनेवर चाइल्ड इज बोर्न, पहला इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का होता है, एंड दे आर द फर्स्ट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनपुट which sort of makes our ethical standards. Next is your peers. As you grow old, you go to school, you go to college, meet different people, interact with all those people, you sort of talk to them, and then you sort of make up your mind कि क्या चीज़ सही है, उसके लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है. And finally you experience various things and you learn from your experiences and you figure out कि चीज़ सही है या गलत है. In addition to these three things, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं कि फाइनेंशियल पैसा, मनी इंपॉर्टेंट है या फैमिली या फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करती हैं. इफ मनी इज इंपॉर्टेंट टू यू, देन यू विल थिंक सेपरेटली और डिफरेंटली, एंड इफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट टू यू, देन यू विल थिंक डिफरेंटली. Then we moved on to discuss कि कोई भी business ethics की अगर हम बात करें, we told you what business ethics is. It's basically standards जो कि एक manager के या employees के actions को guide करता है कि employees के कौन से actions सही हैं और कौन से actions सही नहीं हैं. And then we talked about the fact that एम्प्लॉयज़ के एक्शन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम कर रहा हो उसके एक्शंस को जज करने का क्या तरीका है. द सिंपलेस्ट वाज द फिगर दैट आई शोड यू कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आसानी से वो हो जाती है. सेकंड, आप उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी मॉरल वैल्यूज़ को देखेंगे, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, जो उस बंदे ने जो बिहेवियर किया है उसके बारे में हमारी मोरालिटी एथिक्स क्या कहती है. एंड देन फाइनली इजी यू मेक एन एथिकल जजमेंट एंड एन एथिकल डिसीजन कि क्या उसका एक्शन सही था या गलत था. बट देन वी ऑल्सो सेड कि ये काम करना इतना आसान नहीं है. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सिचुएशन एम्बिगुअस हो जाती है, सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है, या सब लोग मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में एग्री नहीं कर रहे होते हैं. सो अब इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में हमने कहा कि किसी भी एक्शन को ये जज करने से पहले कि वो एक्शन सही है या गलत है, आप 4 क्राइटेरियाज को देखते हो. यूटिलिटी इज़ बेसिकली कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे किसको बेनिफिट हो रहा है, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरा फ़ायदा इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा. नेक्स्ट, राइट्स, क्या मैं दूसरों की राइट्स पर ट्रैम्पल तो नहीं कर रहा हूँ. थर्ड, जस्टिस, एम आई बीइंग फेयर टू पीपल. एंड फाइनली केयरिंग, कि जो मेरी दूसरों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या मैं उसको पूरा कर रहा हूँ या पूरा नहीं कर रहा हूँ. नाउ किसी भी एक्शन को आप इस 4 क्राइटेरियाज पर जज करेंगे. अगर आप कोई भी एक्शन इस 4 क्राइटेरियाज पर नेगेटिव आता है कि नहीं किसी को यूटिलिटी नहीं है, नहीं ये राइट्स को ट्रैम्पल करता है, नहीं ये फेयर नहीं है और ये केयरिंग के खिलाफ है, देन दैट एक्शन ऑफ योर्स विल श्योरली बी अनएथिकल. सिमिलरली अगर आप ये कहते हो कि हाँ इसकी यूटिलिटी है सब लोगों के लिए, सबको इससे फ़ायदा हो रहा है, या ये बिल्कुल फेयर डिसीजन है, या मेरा एक्शन बिल्कुल
फेयर है, या मैं किसी की राइट्स पर ट्रैम्पल नहीं कर रहा हूँ, या जो मेरी दूसरों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरा एक्शन उनको फुलफिल कर रहा है, then automatically if it's a yes on all these 4 criteria, then it automatically means that your action is ethical. अभी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको 2 क्राइटेरियाज पर yes आएगा और 2 क्राइटेरियाज पर नहीं आएगा. इस सिचुएशन में आप क्या करें? आप तो कंफ्यूज हो गए कि एथिकल है या अनएथिकल है. इस केस में आप ये करते हैं कि आप देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया इस सिचुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है. कई दफ़ा जस्टिस इंपॉर्टेंट होता है और यूटिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. कई दफ़ा आप राइट्स को ज़्यादा वेट देते हैं और केयरिंग को इतना वेट नहीं देते, और इसकी बेसिस पर, इंपॉर्टेंस की बेसिस पर आप कुछ चीज़ों को ओवरराइड करते हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हो और देखते हो कि आपके जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो, या आपका जो बिहेवियर है वो एथिकल है या नहीं है. देन वी फर्दर वेंट ऑन एंड वी सेड कि जी कोई भी इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन वो 3 किस्म के लोगों की तरफ होता है. फर्स्ट आप एम्प्लॉयज़ की तरफ होता है, एम्प्लॉयज़ की तरफ इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, इन टर्म्स ऑफ फायरिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कि उनको आप कितनी वेजेस दे रहे हो और कितनी सैलरी दे रहे हो. नेक्स्ट आप आपके एम्प्लॉयर या आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे. आर यू बीइंग रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप सही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे. एंड फाइनली आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो सप्लायर्स हों, चाहे वो आपके रिटेलर्स हों, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हों. आप उनको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन, या आपके स्टॉक होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, आप उनको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे. क्या आपने स्टॉक होल्डर्स को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही बता रहे हो या नहीं बता रहे. अगर सही बता रहे हैं देन योर बिहेवियर इज राइट. अगर सही नहीं बता रहे देन योर बिहेवियर इज अनएथिकल और रॉन्ग. सो बेसिकली आपका इन तीनों किस्म की कैटेगरीज के लोगों के साथ आपका बिहेवियर होता है. एंड फाइनली वी एंडेड द डिस्कशन विद द फैक्ट दैट किसी भी कंपनी के लिए एथिक्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एथिक्स कम्स इन द कोर वैल्यूज़ एंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस विच डू नॉट चेंज एवर. इन कोर प्रिंसिपल्स और कोर वैल्यूज़ की बेसिस पर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पर आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. जस्ट थिंक फॉर अ मिनट कि अगर आपके वैल्यूज़ या एथिकल स्टैंडर्ड सही नहीं होंगे, दैट मीन्स आपके कोर प्रिंसिपल्स और कोर वैल्यूज़ सही नहीं होंगी. अगर वो कोर वैल्यूज़ सही नहीं है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी सही नहीं बन सकते, और अगर आपके ऑब्जेक्टिव सही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो भी सही नहीं होंगी, या वो भी गलत होंगी, या वो भी एथिकली गलत होंगी. सो बेसिकली इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट दे हैव द राइट काइंड ऑफ वैल्यूज एंड द राइट एथिकल स्टैंडर्ड्स राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कोर वैल्यूज एंड इट्स कोर प्रिंसिपल्स. वी एंडेड आवर डिस्कशन विद द फैक्ट कि हम मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज़ को कैसे लर्न करवाएं कि उनको एथिक्स को फॉलो करना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स उनके होने चाहिए. फर्स्ट स्टेप, यू हैव अ रिटन कोड ऑफ कॉन्डक्ट. हर चीज़ इन राइटिंग, ब्लैक एंड वाइट. यू डोंट लीव थिंग्स एंड यू डोंट लीव एरिया, यू डोंट लीव ग्रे एरियाज. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट. Second thing is that you need to continuously remind them that they need to make ethical decisions. ये रिमाइंडर कैसे होगा? जब उनके पास एक क्लियर कट कोड ऑफ एथिक्स होगी. And finally, you need to update your laws and regulations. You need to make sure कि जो भी आप laws, कोई भी ऐसा लॉ जो आप कंपनी में बनाते हैं जो कि विद रेफरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स होता है, आप उसको अपडेट करते रहें. ये नहीं होगा जो 1904 में 1904 में जो लॉ बना था एथिक्स के बारे में वो आज हम 2012 में भी अप्लाई करें, बिकॉज वो लॉ अब अप्लाई नहीं हो सकता है. सो यू नीड टू अपडेट योर लॉज, यू नीड टू रीड, यू नीड टू चेंज देम पीरियडिकली. यू नीड टू सी कि क्या वो अभी अप्लाई होते हैं और क्या वो अभी अप्लाई नहीं होते. दिस इज जस्ट द एथिक्स पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. द corporate social responsibility portion or the CSR portion we'll cover in chapter number that is chapter number 3, but we'll cover it in lecture number 6. Thank you for today.